नमस्कार। मोर परवर्ती आलोचना होची ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास एवं यही अध्याय रे आमे आलोचना करिबा ओडिया भाषार सृष्टि तार संभाव्य काल उत्स संपर्क रे एवं आधुनिक ओडिया भाषा आमे जदि कहिबा 1850 ख्रीष्टाब्द पर्यंत विकसित होई आसीथिबा ओडिया भाषार रूप संपर्क रे मध्य आलोचना करिबा। आमे जानिछे जे ओडिया भाषा होची भारतर संविधान स्वीकृत भाषा मध्य रे अन्यतम एवं निकट अतीत रे यह शास्त्रीय भाषार मान्यता मध्य लाभ करिछि। वर्तमान सुद्धा भारत रे जो 6टी भाषा को शास्त्रीय मान्यता प्रदान करा जाइछि तन्मध्य रे ओडिया होछि अन्यतम। तेबे सेही ओडिया भाषा ओडिशार प्राय 60,000 वर्ग माइल एवं वेस्ट बेंगल हमर जोटा पश्चिम बंग, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश प्रभृति अंचल रे मध्य यह एक भाषा हिसाब रे व्यवहृत हुए। तेणु यार नेटिव स्पीकर ओडिशा रे बास करुथुबा लोक मानक मध्य रे 82% लोक जदि ओडिया रे आमे कथावार्ता करुचे भाव विनिमय करुचे ताले अवशिष्ट 18% ओडिया भाषा भाषी ओडिशार भूखंड बाहरे सेमाने बसवास करुछन। तेणु ओडिशार यह होची ऑफिशियल लैंग्वेज मातृभाषा एवं मुख्यतः यार जदि आमे उत्स संपर्क रे देखिबा जे एई भाषा यार मूल उत्स होची भारतीय आर्य भाषा बा संस्कृत एवं संस्कृत बा भारतीय आर्य भाषा हेउची यूरोपीय बा इंडो यूरोपीय भाषा परिवारर 7म वर्ग अंतर्गत भारत ईरानीय बा इंडो ईरानियन आर्य शाखार भारतीय आर्य उपशाखा। भारतीय आर्य भाषा कालक्रमे 3टी मुख्य स्तर देई गति करिछि, यथा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा एवं तार कालखंड बा समय सीमा हेउछि ख्रीष्टपूर्व 1500 रु ख्रीष्टपूर्व 500। मध्य भारतीय आर्य भाषा ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टाब्द 1000 एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जोटा को हमें MIL कहू मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ताहा होची ख्रीष्टाब्द 1000 परवर्ती। एई प्राचीन भारतीय आर्य भाषार प्रथम पर्याय को वैदिक संस्कृत और परवर्ती पर्याय को लौकिक संस्कृत कुहा जाए। जनसाधारण द्वारा कथित संस्कृत रु सृष्टि लाभ करिथिला मध्य भारतीय आर्य भाषा। एहाकु 3टी स्तर रे भाषा विज्ञानी माने विभक्त करिसंती मध्य भारतीय आर्य भाषा को। प्रथम स्तर होची पाली भाषा एवं এই पाली भाषार समय होची ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टपूर्व 200। द्वितीय स्तर होची प्राकृत भाषा एवं तार कालखंड होची ख्रीष्टपूर्व 200 रु ख्रीष्टाब्द 500 एवं तृतीय स्तर होची अपभ्रंश भाषा ख्रीष्टाब्द 500 रु ख्रीष्टाब्द 1000। तेबे विकास
ସ୍ଥଳଭେଦରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ପ୍ରାକୃତ, ସୌରସେନୀ ପ୍ରାକୃତ, ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ, ପୈଶାଚୀ ପ୍ରାକୃତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ। ଆମେ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମରେ କହିଛେ ଯେ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ଭାଷାର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହୁଛି ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବେଳକୁ ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ପ୍ରାନ୍ତରେ ବା ପ୍ରଦେଶରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭେଦ ଭାଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦିଓ ପ୍ରାକୃତର ପୂର୍ବ ମାନେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଇମିଡିଏଟ୍ ଜନନୀ ଯଦି କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ପାଲି ଏବଂ ପାଲିର ପୂର୍ବ ଭାଷାଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ବା ସଂସ୍କୃତ। ଲୌକିକର ପୂର୍ବଟିଏ ହେଉଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତର ପୂର୍ବ ଶାଖା ମାନେ ପୂର୍ବ ଭାଷା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତମ ବର୍ଗର ଭିତରେ ଥିବା ଭାରତ ଇରାନୀୟ ବା ଇଣ୍ଡୋ ଇରାନିଆନ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖାର ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଉପଶାଖା। ଆମେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଇରାନୀୟ ଶବ୍ଦର ଯଦି କହିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 ବେଳେ ଅନେକ ଶବ୍ଦର ସମାନତା ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଇରାନୀୟ ଶବ୍ଦର, ଯେହେତୁ ୟାର ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ। ଏମିତି ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ସହିତ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଯାହା ସଂସ୍କୃତ ଭଳିଆ ଟିକେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ, ଯାହାର ବ୍ୟାକରଣ ତାର ଧାତୁ ଭିତରେ କିଛି ସମାନତା ଅଛି, ସେଇଟା ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚକୁ ନେଉଛେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ ବା ଯେ କେହି ଚାହିଁଲେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଯେଉଁ ରକମର ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ବ୍ୟାକରଣ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଅଛି ସମାନ ଭାବରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷା ବା ଫରାସୀ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ମାନେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାରୁ ସଂସ୍କୃତ, ସଂସ୍କୃତରୁ ପାଲି, ପାଲିରୁ ପ୍ରାକୃତ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ତାର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ଭୂଗୋଳର ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶରେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହା ବିକଶିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହେଉଛି ଯେଉଁ କହିଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ସୌରସେନୀ, ମାଗଧୀ, ପୈଶାଚୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ। ଏବଂ এই ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକୃତ ଶାଖାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥିଲା ଅନେକ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା। ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତରୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ସମୟର ମଗଧ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିହାର, ଯାହାର ରାଜଧାନୀ ପାଟନା, ତାର ପାଟଳିପୁତ୍ର ସେତେବେଳେ ନାମ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଆହୁରି ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ପୁଷ୍ପପୁର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ এই ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅପଭ୍ରଂଶ କେତେକ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା ସେ ଭିତରେ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ଭାଗ। ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତର 5ଟା ଭାଗ ବା ଶାଖା ବାହାରିଥିଲା। ସେ ଶାଖାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ, ପଶ୍ଚିମୀ ମାଗଧୀ, ଉତ୍ତରୀ ମାଗଧୀ, ଦକ୍ଷିଣୀ ମାଗଧୀ ଓ ମଧ୍ୟ ମାଗଧୀ। ଏହି ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଉଛି ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତର ଅନ୍ୟତମ ଶାଖା, ଯହିଁରୁ ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ତେଣୁ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଓରିଆ ମର୍ଫୋଲୋଜି ପୁସ୍ତକରେ ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର
ए संपर्क रे मत देइछंती। तेबे आमे कहूचे जे ओडिया भाषा पूर्व मागधी अपभ्रंशरू सृष्टि होईछि। एबे सेही प्रसंग रे मध्य देखिबा जे भारत वर्ष को आर्य माने विभिन्न दल रे आसीथिले। सेमानंकर आगमन को आधार करी भारतीय आर्य भाषा को माने प्राचीन संस्कृत जोटा आम कहूचे वैदिक संस्कृत को प्राचीन आर्य भाषा को तीन भाग रे विभक्त करिसंती भाषा विज्ञानी माने, यथा बहिरंग, मध्यवर्ती और अंतरंग बा केंद्रीय। बहिरंग वर्गीय भाषा गुड़िक मध्यरे रहिछि लहंदा जहा होछि पश्चिमी पंजाबी, सिंधी, मराठी, बंगाली, बिहारी, आसामी और ओडिया अंतर्भुक्त। तेणु ओडिया हेउछि बहिरंग वर्गीय भाषा बोली डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ये जड़े हिंदी भाषार भाषा विज्ञानी तांकर भाषा विज्ञान पुस्तक रे सूचना देइछंती। तेबे औपभाषिक और कालक्रमिक इतिहास दृष्टि ओडिया भाषा हेउछि पूर्वी मागधी अपभ्रंशर एक उपशाखा। पूर्वी मागधी अपभ्रंश दुई भागे विभक्त, माने मगधरू पूर्व दिग को जो ब्रांच टीए जो शाखा टीए जो दल टीए आसीबे से माने दुई भागे विभक्त हो जाइछंती। उत्तर पूर्वी मागधी और दक्षिणी पूर्वी मागधी। बंगाली और आसामी भाषा हेउछि उत्तरी मागधी अपभ्रंश प्रशाखार अंतर्भुक्त और ओडिया हेउछि दक्षिणी पूर्वी मागधी अपभ्रंश भाषार अंतर्भुक्त। एवं ए संपर्क रे मध्य से डॉक्टर हरप्रिया मिश्र तांकर हिस्टोरिकल ओरिया मॉर्फोलॉजी पुस्तक रे आलोचना करिसंती। तेणु पूर्वी मागधी अपभ्रंश जो कुहा जाइथिला पूर्वी मागधी अपभ्रंशर ये होची दक्षिणी पूर्वी मागधी अपभ्रंश प्रशाखार अंतर्भुक्त बोली डॉक्टर हरप्रिया मिश्र कहती। ओडिया भाषा पूर्वी मागधी अपभ्रंशरू उत्पत्ति लाभ करिथिले हैं सौरसेनी और अर्ध मागधी प्राकृतर केतेक लक्षण मध्य एथिरे परिलक्षित हुए बोली डॉक्टर बेणीमाधव पाढ़ी तांकर ओडिया भाषार रूपतत्व पुस्तक रे उल्लेख करिसंती। तेणु पूर्व मागधी अपभ्रंशरू ओडिया भाषा सृष्टि होइछि ठीक अछि, किंतु ता सहित सौरसेनी और अर्ध मागधी प्राकृतर केतेक लक्षण मध्य एथिरे दृष्टिगोचर हुए बा परिलक्षित हुए। दक्षिणी पूर्वी मागधी अपभ्रंशर अन्य नाम औड्री अपभ्रंश थिबार बहु प्रमाण मध्य देखिबाकू मिले। एही औड्री अपभ्रंशर पूर्व रूप हेउछि भरतंकर नाट्यशास्त्र रे उल्लिखित औड्री विभाषा। तांकर नाट्यशास्त्र रे से उड्रजा औड्री माने उड्रजा प्राकृत उड्रजा विभाषा बा औड्री विभाषा और औड्र जोटा औड्री मागधी रीतिर उल्लेख करिसंती। नाट्यशास्त्र रे से दुईटी रीति संपर्क रे आलोचना कला बेले से उड्रजा औड्री विभाषा एवं औड्र बा औड्री मागधी रीतिर कथा कहिसंती। एवं ताहा मध्य आमे देखुचे तांकर नाट्यशास्त्र रे से कहउछंती
षष्ठ अध्याय 26 श्लोक से कहते जे सकरा भीर चांडाल सबर द्राविड्रो जा हिना बने चराणांच विभाषा सप्त कीर्तिता सेहीपरि आवंती दाक्षिणात्य च तथा चैबोड्र मागधी पांचाली मध्यमा चेति विज्ञेयास्तु प्रवृत्तय। एथिरु गोटिए कथा अनुमान करा जाई पारिबो जे मागधी प्राकृत सहित ऑस्ट्रिक जोटा आदिवासी भाषा बा संस्कृत भाषा भारतवर्ष पूर्व को आसीबा पूर्वरु एठिकार जो जनजाति माने ट्राइबल पीपुल जो मानन को आमे आज एसटी बोली कहूचे से भाषा द्वारा मध्य संस्कृत भाषा निजकु परिवर्धित करिथिला ऑस्ट्रिक भाषा को मध्य ग्रहण करिथिला। तेणु अनुमान करा जाइछि जे मागधी पूर्वी मागधी प्राकृत सहित ऑस्ट्रिक और द्राविड़ भाषार मिश्रण रे ख्रीष्टीय द्वितीय शताब्दी बेलकू एही औड्री विभाषार सृष्टि एही सारिथिला। सप्तम शताब्दी बेलकू एहार नाम थिला औड्री अपभ्रंश। औड्री अपभ्रंश पूर्वी मागधी अपभ्रंशर एक शाखा। एथिरु क्रमशः अन्यतम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा ओडिया भाषार सृष्टि। सप्तम शताब्दी बेलकू ओडिया भाषा उत्तर भारतीय मध्य भारतीय एपरिकी पूर्व भारतीय अन्यान्य भाषा ठारू स्वतंत्र रूप नहीं विकास लाभ करिथिबा कथा एही शताब्दी रे माने सप्तम शताब्दी रे ओडिशा को आसीथिबा विख्यात चीना बौद्ध परिव्राजक हुएन सांकर भारत भ्रमण वृत्तांतरू जना जाई थाए। से एही भाषा को उच्च भावरे उल्लेख करिसंती जेहेतु से होचंती चाइनीज लोक एवं चाइनीज मैंडोरिन भाषा रे से ताकू लिपिबद्ध करिवार चेष्टा करिसंती। तेणु से उच्च बोली उल्लेख करिसंती। एहा उड्र बा ओड्र शब्दर विकृत चाइनीज उदाहरण मात्र। हुएनसांग उल्लेख करिसंती जे उड्र भाषार उच्चारण पद्धति उल्लेखयोग्य भावरे पृथक माने ये जो आमे कहूतिले उत्तर भारतीय मध्य भारतीय एपरिकी पूर्व भारतीय भाषा मानक ठारू ये होची माने आसामी बंगला ठारू ये स्वतंत्र रूप धारण करिथिला। तेणु ख्रीष्टीय सप्तम अष्टम शताब्दी भारतीय आर्य भाषार इतिहास रे वास्तविक होची अपभ्रंश भाषा विकासर युग। हुएनसांग ओड्र देशर जो भाषा संपर्क रे सूचना देइछंती ताहा निश्चित भावरे औड्री अपभ्रंश बोली डॉक्टर बंशीधर महांती तांकर ओडिया भाषा तत्वर भूमिका पुस्तक रे आलोचना करिछंती। अपभ्रंश हेउची विभाषार विकसित रूप एवं भरतंकर नाट्यशास्त्र रे उल्लिखित औड्री विभाषा ही कालक्रमे औड्री अपभ्रंश रे परिणत होईछि। विभाषा संपर्क रे विख्यात भाषाविद ग्रियर्सन मत देइछंती एहा हेउछि एक बा एकाधिक प्राकृत भाषार
अपभ्रष्ट रूप जहा नाटक निर्दिष्ट चरित्र कहले निम्न वर्गर वास्तविक चरित्र मानक द्वारा कथित होई थाए। औड्री विभाषा मुख्यतः मागधी प्राकृतर अपभ्रष्ट रूप एथिरे सौरसेनी प्राकृतर सामान्य लक्षण मिश्रित होई रहिछि। एहाकु मागधी प्राकृतर अपभ्रष्ट रूप कहिबार कारण हेउछि एथिरे द्राविड और ऑस्ट्रिक गोष्ठी भाषार ऑस्ट्रिक माने आदिवासी भाषा गोष्ठीर उपादान मिसी रही। तेणु स्थूलतः कहिबाकु गले प्राचीन ओडिया भाषा भारतीय आर्य माने संस्कृत द्राविड ऑस्ट्रिक गोष्ठी भाषार त्रिवेणी संगम और ए संगम सप्तम शताब्दी बेलकू संघटित होई सारिथिला। तेणु जदि क्रम विकास कथा देखिबा प्राचीन ओडिया भाषार केतेक प्रामाणिक निदर्शन षष्ठ शताब्दी रु पंचदश शताब्दी मध्यरे लिखित अभिलेख गद्य रचना और पद्य रचना रे परिदृष्ट होई थाए। शैलध्वव भौमकर और गंगवंशीय राजा मानक द्वारा खोदायित अभिलेख गुड़िकरे जत्र तत्र ओडिया शब्दर संधान मिले। उदाहरण स्वरूप धर्मराज सुमंडलंकर लेख जार समय होची ख्रीष्टाब्द 569 569 माधव वर्मांकर निविदा ताम्र शासन जार समय होची ख्रीष्टाब्द 619 गंडीबेत बौद्ध मूर्ति रे उत्कीर्ण अभिलेख जार समय होची 10 रु 11 शताब्दी अनंत देव वर्मांकर मंजूषा ताम्र शासन जार समय होची 10 शताब्दी। सेहीपरि द्वितीय वज्रहस्त देवंकर ऊर्जाम शिलालेखा जार समय होची ख्रीष्टाब्द 1051 प्रभृति को ग्रहण करा जाई पारिबो। तेबे आमे माधव वर्मांकर ताम्र शासन रे व्यवहृत हेइथिबा जो कुंभार जार संस्कृत रूप होची कुंभकार एवं अनंत देव वर्मांकर ताम्र शासन रे व्यवहृत भितरु जार संस्कृत शब्द होची अभ्यंतर एवं 15 जार संस्कृत शब्द होची पंचदश एगुड़िक निसंदेह भाव ओडिया ए बाबद कौन सी रकम जुक्तिर आवश्यकता नहीं। एवं प्राचीन ओडिया अभिलेख ग्रंथ रे डॉक्टर कुंज बिहारी त्रिपाठी ए संपर्क रे तथ्य प्रदान करिसंती। तेबे जोटा होची ऊर्जाम बा जाम शिलालेख 1051 ख्रीष्टाब्द रे आंध्र प्रदेश अंतर्गत चिकाकोल जिल्लार ऊर्जाम ग्रामरु आविष्कृत हेइतिला। एहार लिपि थिला नागरी एवं भाषा विकृत संस्कृत। तेबे एथिरे केतेक ओडिया शब्द और तेलुगु शब्द रहिछि। आसंतार आलोचना रे आमे ओडिया भाषार विकास क्रम रे एई अभिलेख एवं विशेष भावरे शिलालेखर क्रम देकी ओडिया भाषार विकास किपरि हेइछि आलोचना करी।